Okay, students, this is about question number 35 according to the CBSE sample paper for 2024-25. It is for 5 marks. It is based on internet and web chapter. So basically, it is talking about the computer networking and it is checking your knowledge about networking. So let's read this question. ABC Private Limited, a multinational technology company, is looking to establish its Indian head office in Bengaluru and a regional office branch in Lucknow. The Bengaluru head office will be organized into four departments: HR, finance, technical, and support. As a network engineer, you have to propose solutions for various queries listed from 1 to 5. Dear students, the questions are going to be similar to this. They may say there is a school with four buildings in Delhi, and some questions related how the computers in each building can be connected, how each building can be connected, how a school in Delhi, now this school is opening a branch in Shimla or in Rajasthan or in America. So, how you are going to uh, connect it, or in which is it going to be LAN, WAN, MAN? So, the questions are going to be similar, whether it is organization with four buildings, five buildings, three buildings, or it is a school with three, four, five buildings, or it is some institute, university, government department, ministry building, or international organization. So basically, all these organizations will have some buildings or some departments, and the question is going to ask you how you are going to connect the computers inside the building and building to building. So here what they are saying, you will be getting this data. The number of computers in each department, office, building are like this. So you will find the names of the buildings or names of the departments. So here you are given the names of the departments as HR department with 175 computers, finance department 35 computers, technical department 50 computers, support department 15 computers, and they want to connect it with Lucknow office. This kind of the small figure will be given where they will be showing the picture. Maybe the rectangular boxes are there representing the departments or blocks or buildings. And this is Bengaluru office setup, and they want to connect it with the Lucknow regional office, or maybe one building in one state, connecting it with the another, opening another office in another state or another country. So this type of the picture will be given to you, and the distances will be given to you. The shortest distance between the departments are as follows: HR to finance, HR to technical, HR to support, finance to technical to support, and to Bangalore office. Now the question comes. Suggest the most suitable department in Bangalore office setup to install the server. This is going to be the same question कि कौन सी बिल्डिंग में, कौन से डिपार्टमेंट में, या फिर कौन से ब्लॉक में, जो आपको चार ब्लॉक्स बोले गए हैं ना, चार बिल्डिंग्स बोली गई, उनमें से कौन से ब्लॉक में या बिल्डिंग में आप सर्वर रखना चाहेंगे. आप नेटवर्क इंजीनियर है, आप सर्वर रखेंगे. Also give a reason to justify your suggested location. आपका आपको वापस यहाँ पर क्वेश्चन में देखना पड़ेगा. द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन ईच डिपार्टमेंट आर एज फॉलोज. ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वही क्वेश्चन में जाके आपको ये दोबारा से देखना है, और ये देखना है विच बिल्डिंग और ब्लॉक हैज गॉट द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंप्यूटर्स. देखते ही पता चल रहा है एचआर डिपार्टमेंट या एचआर का ब्लॉक के अंदर सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स हैं. So this is the place you are going to say the server is going to be here. Answer कैसे लिखना है? The server should be installed in the HR department as it has the most number of computers. तो ये क्वेश्चन तो रहेगा ही. Coming to the next question.
Draw a suitable cable layout of wired network connectivity between the departments in the बेंगलुरु ऑफिस। बेंगलुरु ऑफिस में आपको देखना है कि किस तरह से उन्होंने 4 बिल्डिंग्स या 4 डिपार्टमेंट्स के नाम दिए हैं, कौन सी शेप यूज कर रही है। नाउ यू व्हाट यू हैव टू डू इज, जिस डिपार्टमेंट में या जिस ब्लॉक और बिल्डिंग में सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स हैं उसको आपने सबसे पहले ड्रॉ करना है एचआर। उसके बाद बाकी की 3 बिल्डिंग्स को सीधा आपने उसके साथ कनेक्ट कर देना है और एक बारी डिस्टेंस देख लेना है। आपने एचआर को फाइनेंस के साथ कनेक्ट करा, यहाँ पे आपने क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ था एचआर टू फाइनेंस कनेक्ट करते समय 65 मीटर का डिस्टेंस है, गुड इनफ। एचआर टू टेक्निकल 80 मीटर दिया हुआ है, एचआर टू सपोर्ट 70 मीटर दिया हुआ है, गुड। दिस इज गुड डिस्टेंसेस। आपका डायग्राम वायर डायग्राम बन गया है, आपको इसके मार्क्स मिल जाए। एक बारी फिर भी थोड़ा सा देख लेना होता है बाय एनी चांस, अगर ये आपका 100 मीटर से ऊपर का डिस्टेंस है और ये बाकी के जो डिस्टेंसेस जो मैंने रीड आउट नहीं करे हैं, अगर कई बार ऐसे होता है मे बी एचआर टू फाइनेंस द डिस्टेंस इज ओनली 20 मीटर एंड फाइनेंस टू टेक्निकल इज 20 मीटर, तो हो सकता है आपको टेक्निकल डिपार्टमेंट आगे लगाना पड़े। एचआर टू टेक्निकल का डिस्टेंस टोटल 40 मीटर का बन जाएगा, जबकि आप डायरेक्ट कनेक्शन में एचआर टू टेक्निकल हो सकता है 80 मीटर जा रहा हो। So that is only 1% chance. In 99% of the cases, this is how your wired network आपको बनाना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपने वो वाली बिल्डिंग लेनी है जिसमें सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स हैं, उसको पहले प्लेस कर दीजिए और बाकी के प्लेस कर दीजिए। बाकी की बिल्डिंग्स इस तरह से नीचे की प्लेस कर दीजिए। दैट इज ऑल। थर्ड क्वेश्चन, which networking device would you suggest the company to purchase to interconnect all the computers within a department in Bengaluru office? The question says कि एचआर डिपार्टमेंट में जब आपने 175 कंप्यूटर्स लगाए थे तो कौन सा नेटवर्क डिवाइस आप साथ में लगाएंगे? आपको स्विच या हब लगाना पड़ेगा और इसके थ्रू वायर्ड नेटवर्क की बात कर रहे हैं वो, तो वायर्ड नेटवर्क स्विच या हब या राउटर, वायरलेसली राउटर भी लग सकता है और इससे आप सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली हर ब्लॉक के अंदर किसी में 40 हैं, किसी में 65 कंप्यूटर्स हैं, 85 कंप्यूटर्स हैं, 35 कंप्यूटर्स हैं। हर ब्लॉक में आपको रखना पड़ेगा स्विच जो कि सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करेगा। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी बन सकता है कि वेयर आर यू गोइंग टू प्लेस द रिपीटर? रिपीटर वहां लगता है जब distance between the buildings या distance between the computers is more than 80 meter, 80 मीटर या 90 मीटर या 100 मीटर is the last limit। 100 मीटर तक अगर कंप्यूटर है तो फाइन, अगर 100 कंप्यूटर के डिस्टेंस से ज्यादा पे दूसरी बिल्डिंग है या ब्लॉक है तो आपको रिपीटर लगाना पड़ेगा बीच में, सो दैट सिग्नल्स जो वीक हो रहे हैं वो वापस रीजनरेट हो जाएं। रिपीट का मतलब रीजनरेट हो जाएं, वापस अपनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ में आ जाएं और वो आगे मूव करें। सो ये एक क्वेश्चन आ सकता है इस एरिया में, क्वेश्चन नंबर 3 में। सो रिपीटर टू बी प्लेस बिटवीन ब्लॉक एक्स टू वाई। आपको अपने क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में तो अलग बिल्डिंग होगी तो आपको देखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि कौन सी बिल्डिंग से कौन सी बिल्डिंग का डिस्टेंस 100 मीटर से ज्यादा है, वहां आप रिपीटर लगा सकते हैं as distance between them is more than 100 meter। हब या स्विच कहाँ लगता है? टू बी प्लेस्ड इन ईच ब्लॉक एज ईच ब्लॉक हैज many computers that needs to be included to form a network। Look at the question number 4। The company is considering establishing a network connection between Bengaluru head office and Lucknow regional office। Which type of network will be created? जब एक स्टेट में आपका ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरी स्टेट में आप कनेक्टिविटी बनाने जा रहे हो तो वो आपका वैन कहलाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क कहलाएगा। अगर सेम कैंपस के अंदर एक और बिल्डिंग बन रही है, जैसे हमारा स्कूल है, 4 बिल्डिंग्स है, 5वीं बिल्डिंग्स बनानी है तो वो लोकल एरिया नेटवर्क। अगर एक ही स्टेट के अंदर दूसरा
स्कूल खोल रहे हैं, मीरा मॉडल स्कूल इज हैविंग ब्रांच मेन स्कूल इन जनकपुरी, बट ओपनिंग अनदर स्कूल इन साउथ दिल्ली, तो वो एक ही स्टेट के अंदर है, तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाएगा। बट जनरली क्वेश्चन जो है वो ये कहता है कि एक स्टेट में है और दूसरी स्टेट में वो खोलना चाहते हैं, तो वाइड एरिया नेटवर्क होगा। अगर दूसरी स्टेट नहीं है, दूसरी कंट्री है, तो भी वाइड एरिया नेटवर्क आएगा। जस्टिफाई योर आंसर। अप टू 1 किलोमीटर लोकल एरिया नेटवर्क होता है, अप टू 100। Okay, there was a problem with connectivity. So I hope you have understood hub switch and wide area network. So moving to the next part, this is going to be your fifth question. Fifth question says, द कंपनी प्लान्स टू डेवलप एन इंटरएक्टिव वेबसाइट। तो जब भी आपको कहा जा रहा है इंटरएक्टिव वेबसाइट है, चाहे वो सीबीएसई वाले हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की इंटरएक्टिव वेबसाइट है, कोई पासपोर्ट के लिए जा रहा है, कोई वीजा के लिए जा रहा है, कोई एग्जाम के लिए जा रहा है, कोई अमेजोन वाले हैं, कोई न्यूज चैनल वाले हैं, तो इन सब का इंटरएक्टिव वेबसाइट रहता है कि एक एम्प्लॉय, एक स्टूडेंट एक रोल नंबर डालेगा और उसका एडमिट कार्ड तैयार हो जाएगा, उसका रिजल्ट दिखाई दे जाएगा, तो ये इंटरएक्टिव रहता है। सो वुड यू सजेस्ट द स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट? उसके लिए डायनामिक वेबसाइट बनेगी। आंसर इज गोइंग टू बी अ डायनामिक वेबसाइट इज रिकमेंडेड एज इट कैन डिस्प्ले द डायनामिक परफॉर्मेंस डेटा ऑफ ईच एम्प्लॉय। एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है रिगार्डिंग VoIP। IP is the technology is used which allows one to make voice calls using broadband internet connection. Expand the term VoIP, voice over internet protocol। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज मेंट बाय कुकीज, व्हाट इज मेंट बाय एड ऑन्स। तो आपको चैप्टर पूरा पढ़ना है, चैप्टर एनसीईआरटी के चैप्टर के पीछे की एक्सरसाइज करनी है, और ये 5 क्वेश्चंस जो हैं इनका फॉर्मेट फिक्स रहता है, बड़े आराम से 4 मार्क्स आउट ऑफ 5 आते हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन भी जो है आपको आता है, आपके बुक में सब कुछ है। सो रीड योर बुक थॉरोली टू गेट 5 on 5 in this. Thank you so much for joining.